guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's class, we are going to start something new and different from our previous lectures. As an English medium student, many problems come to us when we have to study about child development and pedagogy. And if we are preparing for teaching examinations, this topic is very important for us. I, being an English medium student, faced a lot of problems when I have to study these subjects. So here I am trying to help you out by providing you these theories in English. So today we are going to study about child development and pedagogy. I am going to teach you all the important theories which holds very important marks for our competitive exams. Whether you are preparing for REET, KVS, CTET, first grade, second grade, any teaching examination, this part is very important, right? So today we are going to start with our first theory of Piaget, that is cognitive development theory. This theory is itself very important. So Piaget's cognitive development theory. Before starting off with this theory, first let's know about Piaget a bit, right? So Piaget was a Swiss psychologist. Piaget एक Swiss psychologist थे and he was a constructivist. What do you mean by a constructivist? Constructivist is a person who believes that a child can construct or develop knowledge by doing activities. Or in other terms, we can say that ऐसा पर्सन जो इस चीज को बिलीव करे कि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है बाय डूइंग एक्टिविटीज, राइट? हम कहते हैं ना बच्चे को अपने आप, हम बच्चे को थोड़ा चलना सिखाते हैं, गिरते हैं, फिर हम कहते हैं उसको अपने आप उठने दो, तो वो क्या है अपनी एक्टिविटी से गिर के उठना सीखेगा, तो वो अपने आप अपनी जो नॉलेज है उसको क्या है डेवलप कर लेगा, अपना स्कीमा डेवलप कर लेगा. अगर वो दूसरी बार गिरेगा तो वो अपने आप गिर के उठ जाएगा, right? So this is what Piaget says. Piaget also called child a little scientist. He stated that कि जो बच्चा है वो क्या है एक नन्हा वैज्ञानिक है. बच्चे के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है. हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं अबाउट कलर्स, उन्हें नई नई चीजें दिखती हैं, वो हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उनको ये होता है कि हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए. So they are in a process of constructing knowledge. They are in a process of developing their schemas, right? So cognition. What is cognition? First, the process of developing knowledge or knowing something is known as cognition. किसी भी चीज को जानना is cognition. It includes all these skills. Cognition क्या है? हर तरीके की skills को involve करता है through which child construct knowledge. ऐसी skills जिनसे जो बच्चा है वो अपनी knowledge जो है उसको construct करता जाता है. Such as mental skills. Mental skills हम develop करते हैं. Reasoning, problem वो solve करेगा तो उसकी definitely knowledge होगी. And imaginations. All these things are related to cognition, जिसमें बच्चा अपने आप जो है अपनी knowledge को construct करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखता है, राइट? Piaget's theory tells us that the child is born with mental cognitive structures which develop and attain maximum growth around the age of 14 and 15. Piaget हमें क्या बोलते हैं कि जो बच्चा है वो बॉर्न ही होता है, पैदा ही होता है विद द मेंटल स्ट्रक्चर्स और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और वो डेवलप उसको हेल्प करते हैं क्या डेवलप करने के लिए, नॉलेज डेवलप करने के लिए, राइट? और ये जो चीज है ये कब तक होती है हमारी बच्चे में? मैक्सिमम 14 to 15 जो इनकी लास्ट एज है. हम इनकी स्टेजेस जो पढ़ेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, राइट? नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट Piaget a bit, इनकी क्या नॉलेज है, ये Piaget जो है ये हमें बेसिकली क्या बोलते हैं, बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज को खुद डेवलप करता है. ये बोलते हैं बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, राइट? Piaget ये भी बोलते हैं कि जो बच्चा है
वो अपने आप सब कुछ सीखता है, ठीक है। और ये सबसे कम इंपॉर्टेंस किस पे देते हैं, सोशल इंटरैक्शन पे, ठीक है। जबकि जो हम वाइगोट्स्की पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे देते हैं, सोशल इंटरैक्शन पे, राइट। अब पियाजे की थ्योरी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो स्टेजेस पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है। स्टेजेस में हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजेस है पियाजे की। एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारे पास स्कीमा, अडैप्शन, assimilation and accommodation. Before discussing about the stages and the cognitive processes, let's have a look at the factors that Piaget believes affect the child's cognitive development. So the first factor according to Piaget is maturation. यहाँ पे Piaget क्या बोलते हैं, maturation means that it depends on heredity, ठीक है। बच्चा क्या है अपनी एज के अकॉर्डिंग धीरे 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 मेच्योर होगा, अपने स्कीमा जो है उसको वो डेवलप करता जाएगा, राइट। इसमें है रेडीनेस टू लर्न। हमने एक पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ रेडीनेस एंड रेडीनेस टू लर्न। तो लॉ ऑफ रेडीनेस इज थॉर्नडाइक, जो हम थॉर्नडाइक की थ्योरी में पढ़ेंगे, बट हियर इट इज रेडीनेस टू लर्न। दैट मीन्स हम बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है, नर्सरी एलकेजी का बच्चा है, उसे हम पियाजे नहीं पढ़ा सकते, उसे हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में नहीं बता सकते कि पियाजे ने आपके बारे में क्या बोला है या क्या थ्योरी दी है। हमारा स्कूल है, राइट, हमारे स्कूल में भी एक करिकुलम चलता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए ये सिलेबस, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। सो हम क्या है बच्चे को उसकी एज के हिसाब से, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसका स्कीमा डेवलप होता है। सो दिस इज व्हाट इट रेडीनेस टू लर्न। ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन आता है कि रेडीनेस टू लर्न एंड लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन थॉर्नडाइक थ्योरी, एंड रेडीनेस टू लर्न इज जिसमें हम बच्चे को अकॉर्डिंग टू देयर एज हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका स्कीमा जो है वो डेवलप हो सके। नाउ एक्सपीरियंस, बच्चा क्या है, पियाजे ने क्या बोला, बच्चा एक्टिविटी करके जो है वो लर्न करता है। तो वो एक्टिविटी करके कुछ लर्न कर रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस से उस चीज को लर्न कर रहा है, राइट। बच्चा कुछ भी खेल रहा है, उसको एक बार हमने सिखा दिया, ठीक है, अब उसको खेलना आ गया, अब वो क्या है उसमें और चीजें ऐड करता जाएगा, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो और अच्छा प्लेयर बन जाएगा, राइट। तो वो एक्टिविटी कुछ भी करेगा तो उसकी नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसके स्कीमा में ऐड होती जा रही है। देन सोशल इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन पे सबसे कम तवज्जो दी है हमारे जीन पियाजे ने। जब हम वाइगोट्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे दी है, सोशल इंटरैक्शन पे, राइट। इन्होंने किस पे वो दी है, ईगोसेंट्रिक स्पीच के, बच्चा क्या है अपने आप से बात करता है, बच्चा क्या है सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है इस एज के अंदर, राइट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच, जो कि हम वाइगोट्स्की में पढ़ेंगे। नाउ इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन क्या होता है बेटा, बैलेंस। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आई, राइट, हमारे दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट आई और उससे हम क्लैरिटी की ओर पहुंच गए, दैट इज इक्विलिब्रेशन, राइट। कि हमारे कुछ सपोज आपको ये बताया गया कि कैट है, ठीक है, आप एक कैट को देखा बच्चे ने, बच्चा आइडेंटिफाई करने लग गया कैट है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं आई। अब उसने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैट भी देखी तो उसने क्या, उसको अपने स्कीमा के अंदर स्टोर कर लिया कि कैट क्या है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है, ब्राउन कलर की भी हो सकती है, व्हाइट कलर की भी हो सकती है। तो वो क्या है, एक उसने अपनी नॉलेज को डेवलप कर लिया, दैट इज इक्विलिब्रेशन, राइट। अब हमने इतनी स्कीमा की बात कर ली, तो स्कीमा होते क्या है, इट इज अ पैकेट ऑफ नॉलेज, राइट। मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड नॉलेज और पैकेट्स ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है। और स्कीमा जो है वो हमेशा अपडेट होता रहता है, स्कीमा कीप्स ऑन अपडेटिंग। हमने सपोज हमारे पास पहले पुराने फोन्स थे, अगर हम एग्जांपल लें कीपैड वाले फोन्स चलते थे, तो हमारी जो एक्सपीरियंस था वो उसके साथ हो गया था कि हमें कीपैड वाला फोन किस तरीके से यूज करना है। बट उसके बाद हमारे पास स्मार्टफोन्स आए तो हमारा स्कीमा जो है वो क्या है, अपडेट हो गया। हमने क्या है वो
स्मार्टफोन्स यूज करना सीख लिया। तो ये क्या है, हमेशा हमारी जो नॉलेज है वो हम उसको क्या है कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज मैच्योरेशन। हर चीज को हम एक टाइम के साथ साथ और ज्यादा सीखते जाते हैं। नाउ ये हो गया हमारे फैक्टर्स। फैक्टर्स आपको इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर्स का है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सोशल इंटरैक्शन पे लेस इंपॉर्टेंस किसने दी है, तो पियाजे ने दी है। ठीक है, अब आता है प्रोसेस ऑफ अडैप्शन। ये हमने पढ़े थे, प्रोसेस ऑफ अडैप्शन। अब प्रोसेस ऑफ अडैप्शन में आपको देखने को मिल रही होंगी ये चीजें, 5 चीजें: असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड अकोमोडेशन। अब देखो, सबसे पहले इज असिमिलेशन। असिमिलेशन है क्या, हम जो भी अपने स्कीमा है उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई चीज देखी, कोई भी नई चीज देखी, तो वो हमारी क्या है, नॉलेज हमारे स्कीमा के अंदर ऐड हो गई। हमने सपोज कैट ही देखी, तो वो क्या है, हमारे स्कीमा में ऐड हो गई कि कैट है, राइट। उसके बाद आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है बेटा, जब आपने एक कैट देखी, ठीक है, अब हमें तो यही है कि एक ही कलर की कैट है। सपोज हमने फर्स्ट टाइम व्हाइट कैट देखी, बट उसके बाद हमने ब्लैक कलर की कैट देख ली, तो हमारे क्या है, माइंड में तो था कि व्हाइट कैट होती है, बट वो तो कौन सी थी, ब्लैक कलर की कैट थी। बट हमने क्या, उसको अडेप्ट कर लिया। हमने क्या करा, उस चीज को हमने अपने माइंड में कंफ्यूजन क्लियर कर लिया और हमने मान लिया कि कैट के क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, और वो हमने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कि कलर कैट जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती है। तो वो हमारी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट से हम किसकी तरफ चले गए, क्लैरिटी आ गई, तो वो हो गया इक्विलिब्रेशन। फिर हमारे पास एक न्यू सिचुएशन आई। क्या सिचुएशन आई, एक बच्चे को उसके पेरेंट्स जू में ले गए। बच्चे ने क्या देखी थी, छोटी सी कैट। अब जू में जाके बच्चे ने क्या देखा, बड़ा सा लायन। अब उसको ये लग रहा है कि यार ये तो क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा कैट है, ये कैसी कैट है। तो उसके मन में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। उसने जो दिमाग में पिक्चर बनाई थी और जो सामने उसके पिक्चर थी, दैट इज वेरी डिफरेंट। वो तो छोटी सी है, वो इतना बड़ा है, तो उसके बीच में क्या आ गई, कॉन्फ्लिक्ट आ गई। अब वो क्या है, अपनी नॉलेज को मॉडिफाई कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। उसको बताया गया कि नहीं, कैट अलग होता है बेटा, लायन अलग होता है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट एनिमल्स है। तो उसने क्या है, अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसको क्या करा, मॉडिफाई करा, एडजस्ट करा, और उसके बाद उसने क्या करा, उसको अपनी नॉलेज में अकोमोडेट कर लिया, और उस प्रोसेस को बोला जाता है अकोमोडेशन। जब हम इस डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज को क्लियर कर लेते हैं क्लैरिटी की तरफ और अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो वो चीज क्या बोली जाती है, अकोमोडेशन। बेसिकली ये जो प्रोसेस ऑफ अडैप्शन है, इसमें आपको 2 चीजें याद रखने की है, व्हाट इज असिमिलेशन एंड व्हाट इज अकोमोडेशन। तो असिमिलेशन क्या है आपका, कि जब आप ऐड कर रहे हो नॉलेज स्कीमा के अंदर, ठीक है, और अकोमोडेशन क्या है, जब आप उस नॉलेज को मॉडिफाई कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, जैसे कि कैटल लायन, राइट। तो हमने क्या चेंज करी, मॉडिफाई करी, एडजस्ट करी अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा को। तो वो प्रोसेस होता है अकोमोडेशन। और असिमिलेशन क्या है, जब हम सिंपल सी नॉलेज ऐड कर रहे हैं अपने स्कीमा के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। Now we are going to start with the stages of cognitive development. There are 4 stages of cognitive development named as: first is sensory motor stage, second is pre-operational stage, third is concrete operational stage and fourth is formal operational stage. तो जो हमारे पियाजे थे, पियाजे ने क्या है, अपनी जो cognitive development theory है उसकी 4 stages दी हैं कि चाइल्ड जो है वो अपनी जो नॉलेज है उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है। सो हम सबसे पहले ये स्टेज अगर देखते हैं, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें कितने इयर्स का बच्चा है, 0 to 2। जब हम खुद जानते हैं 0 से 2 इयर्स का बच्चा है, तो वो अपनी जो स्कीमा है उसको डेवलप कैसे करेगा, क्योंकि हमारे जो पियाजे हैं उन्होंने क्या बोला है, बच्चा अपना स्कीमा कैसे डेवलप कर रहा है, बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे बच्चा कैसे सीख रहा है, यूज ऑफ सेंसेस, लर्न यूजिंग सेंसेस। सबसे ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करके बच्चा जब कोई चीज सीखता है तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही सीखता है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में बहुत बार आ चुका है कि नेम द स्टेज इन विच द चाइल्ड लर्न्स द मोस्ट बाय यूजिंग देयर सेंसेस। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपनी सेंसेस को यूज कर
चीजें सीखता है, जैसे कि वो स्मेल से पहचानने लगता है, टच से, आवाज से, इन सब चीजों को यूज करके वो अपनी नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना चालू करता है। जैसे हम कहते हैं अपनी मम्मी को पहचानने लग गया, पापा को पहचान, तो वो क्या है, वो अपने बोल तो नहीं सकता बट वो अपने सेंसेस से उसको पहचान रहा है कि या शी इज माई मदर, ही इज माई फादर, तो वो ये डेवलप कर लेता है। फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब इसमें क्या है, बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस होने लगती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारी क्या होती है कि जैसे कि हमने बच्चे को ये चीज दिखा दी, ठीक है, कोई चीज दिखा दी हमने बच्चे को, अब बच्चा जो है वो सोच रहा है ये चीज इसी तरीके से रहेगी, चेंज नहीं होगी। फिर आता है हमारे पास डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन क्या है, बच्चे ने आपको सपोज कुछ करते हुए देख लिया, आज बच्चे ने आपको कोई लैंग्वेज बोलते हुए देख ली या कोई गेम खेलते हुए देख लिया, कुछ भी करते हुए देख लिया, ठीक है, पर वो उस चीज को अभी इमिटेट नहीं कर रहा है, अभी करके नहीं दिखा रहा है, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद वो उस चीज को इमिटेट करके दिखा रहा है, तो दैट इज नोन एज अ डिफर्ड इमिटेशन। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड इमिटेशन। तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसके अंदर हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है, एक तो सबसे ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल जो है वो बच्चा किसमें करता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, जैसे कि ये पेन आपको दिखा रहे हैं, हम बच्चे को दिखा रहे हैं ये पेन है, तो ये उसके लिए परमानेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि आप इसको बाद में भी कभी दिखाओगे तो वो पहचान जाएगा, ठीक है, जैसे कि बच्चे बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीजों को लेकर। फिर डिफर्ड इमिटेशन, कि उसने आपको कुछ करते हुए देख लिया तो वो उसको क्या है, रिपीट करेगा, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद। नाउ सेकंड इज योर प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब, यहाँ पे बच्चा कितने इयर्स का हो जाता है, 2 to 7 इयर्स का। ईगोसेंट्रिक स्पीच, जैसे मैंने आपको बताया, अहम केंद्रितवाद, इसी को प्राइवेट स्पीच बोलते हैं हमारे वाइगॉट्स्की। नाउ ईगोसेंट्रिक स्पीच में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा इस एज के अंदर आके बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है, उसको ये लगता है पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द है, जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग। बच्चे के बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, अगर हम उनको नहीं दे रहे हैं तो व्हाट विल दे डू, दे स्टार्ट क्राइम, राइट। तो उनमें क्या है, सेल्फ सेंटर्डिज्म आ जाता है, वो ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। इंट्यूटिव रीजनिंग, यहाँ पे क्या है, इस स्टेज तक भी हमारे पास लॉजिक्स नहीं आए, हम अपने इंट्यूशन पे काम करता है बच्चा, क्या है, अपने इंट्यूशंस पे जो है वो काम कर रहा होता है, और यहाँ पे क्या हो जाती है, इरिवर्सिबिलिटी हो जाती है, राइट। इरिवर्सिबिलिटी क्या है बेटा, कि सपोज आपने बच्चे को, मैंने कहा ये पेन है, ठीक है, अब वो बच्चा इस पेन की सिर्फ हाइट को नोटिस कर रहा है, इसके कलर को नोटिस नहीं कर रहा, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट के एक ही फीचर पे ध्यान दे पा रहा है, वो दूसरे फीचर पे ध्यान नहीं दे पा रहा। इसके अंदर वो सिर्फ ये ध्यान दे रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, वो ये ध्यान नहीं दे रहा कि इस पेन का कलर क्या है। सो दिस इज व्हाट इरिवर्सिबिलिटी इज। सो द फीचर्स which are present in pre-operational stages: egocentrism, self-centered, intuitive reasoning, and irreversibility. Now the third one is concrete operational stage. ये 7 से 11 साल का बच्चा हो जाता है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास इंडक्टिव थॉट्स आ जाते हैं। इंडक्टिव थॉट्स क्या होते हैं, जब हम एक जनरल कंक्लूजन कर लेते हैं किसी भी चीज को लेके, हम जनरली कंक्लूड कर लेते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर। सपोज आज हमने बॉल देखी, बॉल जो है वो कैसी है, गोल, ठीक है, सर्कल है, तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि मून का शेप भी कैसा है, बॉल जैसा सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे कोई खास चीज नहीं सोची, सिर्फ हमने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको कंक्लूड कर लिया। यहाँ पे हमारे पास लॉजिक्स आ जाते हैं। अब ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, CCS, दैट इज कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। कंजर्वेशन के अंदर क्या होगा, सपोज मैंने आपको 5 चॉकलेट दी, ठीक है, अब मैंने आपको 5 चॉकलेट दी, ठीक है, अब उसको आपको मैंने साबुत दे दी या उसके टुकड़े करके दी, तो आप ये समझ रहे हो कि ये चॉकलेट तो मैडम ने हमें दे दिया, बट ये क्या है, इसकी क्वांटिटी सेम है। या सिंपल से एग्जांपल अगर हम लें कि हमने 2 लीटर पानी लिया, 2 लीटर पानी को हमने 2 ग्लासेस में डाल दिया, ठीक है, और फिर हमने 2 ही लीटर का जग लिया, उस पानी को हमने 2 लीटर जग में डाल दिया, तो उसकी क्या क्वांटिटी तो
सेम ही है। हम जब ये चीज समझने लग जाते हैं तो दैट इज कंजर्वेशन। मतलब हम अब उसके दूसरे एस्पेक्ट पे भी, अब हम यही नहीं ध्यान दे रहे कि उसकी हाइट कितनी है, हम कलर इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, अब हम दोनों चीजें देख रहे हैं कि पानी की क्वांटिटी कितनी है, और हम उसको अगर डिफरेंट जार में डाल रहे हैं, जैसे कि हमने एक जग में डाला तो वो 2 लीटर पानी एक में ही आ गया, और जब हम 2 लीटर पानी को ग्लासेस में डाल रहे हैं, 2 अलग अलग ग्लासेस में डाल रहे हैं, बट क्वांटिटी तो 2 लीटर ही है। जब हमें ये चीज समझ में आ जाती है तो ये हो जाती है कंजर्वेशन, और ये होती है रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग। फिर आता है क्लासिफिकेशन। जब मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दी सेम, फिर मैंने आपको 10 कुरकुरे दे दिए, 10 आपको वो पेप्सी दे दी, जब आप उनको, मैंने आपको मिक्स अप करके दे दिया, ठीक है, अब मैंने आपको कहा इनको सेपरेट करो, तो आपने क्या करा, कुरकुरे अलग कर दिए, चॉकलेट्स अलग कर दिए, पेप्सी अलग कर दी, तो ये क्या है, आप उसको क्लासिफाई कर पाए। या मैंने आपको कोई शेप्स दे दिए, ट्राइंगल, स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल, ये सब दे दिए, और आप उसको अलग अलग कर पाए, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। सीरिएशन, कि हम छोटे से बड़ा जमा पाए या बड़े से छोटा जमा पाए, जब आपको नॉलेज आ जाती है कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, दैट इज called as seriation. So concrete operational stage is the most important stage of cognitive development theory. Now the last stage is formal operational stage, 11 to 15 years. इसमें highest level of cognition होता है inductive, deductive thinking भी आ जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉजिक्स को क्रिएट करते हैं और कंक्लूजन बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है, राइट, कि हम जो हमारी इमेजिनेशन है उसमें भी हम सोचने लगते हैं, और यहाँ पे हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सो दैट्स ऑल फॉर आवर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड नाउ वी आर डन विद दिस Piaget's theory of cognitive development. I hope you understood it well. In this we have discussed about Piaget, his theory, what he tells, इन्होंने बच्चे को क्या बोला, एक लिटिल साइंटिस्ट, he says a child develops his knowledge and constructs its knowledge by performing activities. फिर हमने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ अडैप्शन, उसके अंदर हमने पढ़ा व्हाट वी हैव स्टडीड इज असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, एंड देन अकोमोडेशन। इसमें हमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन इज जब हम अपने स्कीमा में कोई नॉलेज को एड अप करते हैं, और अकोमोडेशन इज जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं या एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हिच आर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, concrete operational stage, and formal operational stage. And as of now we are done with this Piaget. In our next class we are going to start with Vygotsky's theory, right? If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.